Hello dear children, a very warm welcome to the English class. How are you all? I am sure you all are good, happy, healthy and in a cheerful mood in your homes. And I am also sure you all are taking good care of yourself, taking all the necessary precautions and listening to your parents. This is our English class, children. So are you all ready to start the class? So here I am. We are doing lesson number 4 in our main course book, Wordsworth English Reader. We are doing lesson number 4, which is My School. In this lesson, a girl called Yavi, she is telling us about her new school. She has gone to a new school and she is telling us about her new school. She is very happy because she says her school building is very big and very beautiful. It has many classrooms. There is a big skating rink. There is a large swimming pool. Then she tells us about her friends. Who sits on her right, who sits on her left, what do they do during recess, and she is very happy with her new school. So we have completed the reading part, explanation मैंने कर दिया है, and we have started the exercises. Wow words कर लिए, word meanings कर लिया. In exercise we have done the comprehension part, then we did word building. In word building, we did words having similar meanings. Different words but having similar meanings. Then we did sound of O. The words with sound of O. Okay? उसके बाद फिर हमने क्या किया? Then we did question words. What are the question words? When you ask someone something, जब आप किसी से कोई प्रश्न पूछते हो, कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो we start that sentence with a question word like how, what, when, where, which. Okay? All these words are known as question words. And whenever we ask a question, we always put a question mark at the end of the lesson, sentence. Whenever we ask any question, like suppose I ask you, what is your name? If I ask you, what is your name? So this word, what, is the question word, and after the sentence, I have put this question mark. So after a question, we always put a question mark. जैसे sentence के बाद end में full stop लगाते हैं. After a question, we always put a question mark. Okay? Now, today we will be doing writing skills. In this lesson, we will be doing WRITING, writing skills. We will be doing writing skills. Okay? Writing skill का मतलब होता है the art of writing. मतलब किसी भी चीज को लिखना. As I told you, in language, there are 4 basic skill. Skill का मतलब है कि जो 4 मेन, जिसको हिंदी में कहते हैं कौशल. ठीक है? किसी भी लैंग्वेज में there are 4 main skills. मतलब 4 मेन पॉइंट से 4 मेन चीजें हैं जो कि आना आपको जरूरी है. फर्स्ट इज लिसनिंग. लिसनिंग मतलब सुनना. जब तक आपको अच्छे से सुनना नहीं आएगा, until and unless you listen something properly, जब तक आप उसको सुनोगे नहीं, तब तक आप उसको समझ नहीं पाओगे. When the teacher is teaching in the class or you are listening to someone
कोई कुछ बोल रहा है, आप सुन रहे हो, so until and unless you listen it properly, you will not be able to understand it. जब तक कि आप अच्छे से उसको सुनोगे नहीं, समझ में नहीं आएगा. क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं, जो बच्चे अच्छे से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, they are able to answer the questions. उसके बाद अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा तो वो बच्चे उसका आंसर दे देते हैं. But if someone is not paying any attention, if someone is not listening, then the child will not be able to answer. So it is very important that you first you learn how to listen. ठीक है, लैंग्वेज में जो मैं बता रही हूँ 4 स्किल्स है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप दीज 4 स्किल्स. ये जब तक 4 स्किल्स डेवलप नहीं होंगी तब तक लैंग्वेज अच्छे से नहीं आएगी. राइटिंग पार्ट कम्स इन द एंड. 4 स्किल्स में राइटिंग पार्ट जो है वो सबसे लास्ट में आता है. सबसे पहले आपको सुनना आना चाहिए. When a child is born, थोड़ा बड़ा होता है बच्चा, so the child learns to speak. तो कैसे बोलता कैसे है? फर्स्ट ही लिसन्स. जो बच्चे जो होते हैं उनके आसपास जो लोग होते हैं वो जो बात करते हैं, बच्चे उनसे सुन सुन करके ही तो बोलना सीखते हैं ना. उनसे जो बच्चे सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वही चीज बोलते हैं. तो फर्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू लिसन. सुनना सीखो. देन कम्स नेक्स्ट कम्स स्पीकिंग. जब तक आप सुनोगे नहीं ठीक से तब तक बोल नहीं पाओगे. लैंग्वेज है, कुछ भी है, जब छोटे हो, जब आप सुनोगे अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू स्पीक. सुनना सीख लोगे, बोलना सीख लोगे. देन थर्ड कम्स रीडिंग पार्ट. रीड करोगे. until and unless you learn to read, you will not be able to write. क्वेश्चन पेपर है, अगर अपना क्वेश्चन पढ़ना नहीं आएगा तो उसका आंसर कैसे लिखोगे? जब क्वेश्चन पढ़ना आएगा तभी तो आंसर लिख पाओगे ना. तो थर्ड पार्ट इज रीडिंग. सब उसके बाद रीडिंग आनी चाहिए एंड राइटिंग कम्स इन द एंड. ओके, जब बोलना सुनना सीख लोगे, बोलना सीख लोगे, पढ़ना सीख लोगे, देन लिखना सीखोगे. दैट मीन्स फर्स्ट यू मस्ट लर्न हाउ टू लिसन, देन हाउ टू स्पीक, देन हाउ टू रीड, एंड देन कम्स राइटिंग पार्ट. तो राइटिंग स्किल्स मीन्स टू इम्प्रूव योर रिटन पार्ट. लेसन मैंने रीड किया, पहले आपने सुना, उसको सुनने के बाद उसको कैसे रीड करना है, हाउ टू प्रोनाउंस अ पर्टिकुलर वर्ड, उस वर्ड को, किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, रीडिंग किया. ठीक है, दैट इज पहले लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, एंड देन कम्स राइटिंग. सो इन राइटिंग पार्ट टुडे वी विल बी डूइंग समथिंग क्रिएटिव. Along with writing part, there is some creative part also. इस writing skill में हमें writing के साथ साथ थोड़ी सी drawing भी है. In this, what you have to do is, you have to design a thank you card and a thank you card for your parents and thank you card for your teachers. Here, the space is there. ठीक है, इसमें तो आप for your parents you can make any drawing, for your teacher you can make any drawing, but otherwise also make a card. जैसे कार्ड होता है ना, कार्ड इज लाइक दिस, ऐसे करके ऊपर आप कार्ड पे ड्राइंग बनाते हो, देन कार्ड के ऊपर ड्राइंग रहती है कुछ भी, देन वी ओपन इट लाइक दिस, ऐसे कार्ड को खोलते हैं, जो भी लिखना होता है हम अंदर लिखते हैं, देन दिस साइड इज प्लेन. तो यहाँ तो आप अपने पेरेंट्स के लिए यू कैन मेक एनी ड्राइंग, and here you can make any drawing for your teachers, but you have to make a card also. ठीक है, आप एक कार्ड बनाओगे, मैटर मैं लिख के आपको बताऊंगी, और if you wish to write something else, that also you can do. So make a card for your parents, thank you card, and make a card for your teacher, thank you card for your teacher. Now for making card, there is no set pattern कि कार्ड ऐसा ही बनाना है, ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है. कार्ड पे आप कोई भी ड्राइंग बना सकते हो. यू कैन यूज योर इमेजिनेशन, यू कैन यूज योर क्रिएटिविटी टू मेक द कार्ड, एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट द सेम कंटेंट विच आई हैव रिटन हियर, विच आई विल राइट ऑन द बोर्ड राइट नाउ. इट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. ये तो मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताऊंगी
But if you wish to write something else, you are most welcome. आप उसमें कार्ड में अंदर कुछ भी लिख सकते हो, but it should be thank you. Thank you to your parents. Thank you to your teacher. Okay? So अभी तो मैं इसको बता दे रही हूँ. And then you make one thank you card for your parents and one thank you card for your teacher. Okay? So the question is design thank you cards for your parents and teacher. Write two lines for each of them. मतलब अपने पेरेंट्स के लिए एंड अपनी टीचर के लिए यू हैव टू डिजाइन थैंक यू कार्ड्स एंड देन राइट 2 लाइन्स फॉर ईच ऑफ देम. कार्ड के अंदर जो लिखते हैं. सो योर कार्ड इज एज आई टोल्ड यू इट इज लाइक दिस. यहाँ पे आपने कुछ भी ड्राइंग बनाया, जैसे भी आपकी मर्जी. देन इनसाइड हियर यू कैन राइट जो भी लिखना चाहो, whatever you wish to write, you can write here. So this is the place, this is the space for writing. Then this side is left blank. आपकी मर्जी, आप इधर भी कुछ ड्राइंग कर सकते हो. So if it is for your parents, जैसे यहाँ पर आपने कुछ ड्राइंग किया, ठीक है, here you can make any drawing, whatever you wish, and then when you are making card for your parents, you can write thank you parents means mother and father both. Parents का मतलब मम्मी पापा दोनों हो गए, तो thank you dearest mummy and पापा. डियरेस्ट का मतलब होता है जिनको हम बहुत प्यार करते हैं. थैंक यू डियरेस्ट मम्मी एंड पापा फॉर लविंग मी taking care of me and giving me everything I need. पेरेंट्स को आप क्या लिखोगे? पेरेंट्स को अगर आप थैंक यू कार्ड लिखोगे तो व्हाट विल यू राइट? आप ये लिखोगे कि थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, मुझे मेरी केयर करने के लिए, और मैं जो भी मांगता हूं वो सब कुछ देने के लिए. पेरेंट्स को तुम कभी भी थैंक यू बोल ही नहीं सकते, बिकॉज थैंक यू इज अ वेरी स्मॉल वर्ड. थैंक यू इज जस्ट जैसे किसी को, हमें अगर किसी ने हमारी हेल्प की तो वी कैन जस्ट से थैंक यू. पेरेंट्स को हम, जो भी पेरेंट्स हमारे लिए करते हैं, वी कैन नेवर रिपे देम बैक. जो भी पेरेंट्स ने हमारे लिए किया, हम उसको किसी भी तरीके से कभी भी रिटर्न नहीं कर सकते, बिकॉज दे डू सो मच फॉर अस. सो थैंक यू इज जस्ट अ वर्ड, इट इज जस्ट अ ग्रैटिट्यूड वर्ड. अपना मतलब उनके लिए अपना ग्रैटिट्यूड शो करने का एक ये वर्ड है. किसी के लिए भी, किसी ने भी हमारे लिए कुछ किया तो हम बस थैंक यू बोला, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. सो लाइक इसके पहले हमने ईवीएस में पढ़ा था मैजिक वर्ड्स. सो थैंक यू इज वन ऑफ द मैजिक वर्ड्स. व्हेन समबडी डज समथिंग फॉर अस, कोई हमारे लिए कुछ अच्छा काम करता है या हमारी किसी भी तरीके से हेल्प करता है, सो वी से थैंक यू. व्हेन वी से थैंक यू, द अदर पर्सन फील्स हैप्पी. द अदर पर्सन फील्स दैट यस आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. मतलब
किसी ने हमारी किसी भी तरीके से हेल्प की तो हम उस हेल्प को एक्नॉलेज करते हैं, आई एम ग्रेटफुल टू दैट पर्सन, मतलब मैं हम उस हेल्प को मानते हैं कि उसने हमारी हेल्प की। तो थैंक यू इज जस्ट अ वर्ड। कभी इस तरह का कार्ड बना के, आप अपने से कार्ड बना के इफ यू गिव इट टू योर पेरेंट्स, जस्ट सी हाउ हैप्पी दे आर। आप कभी ऐसा पेरेंट्स को अपना कार्ड बना के दोगे, कभी उनकी बर्थडे है या ऐसे भी कभी दोगे, तो जस्ट सी कि उनको कितनी खुशी होती है, दे विल फील सो हैप्पी। सो व्हेन यू मेक दिस कार्ड, डू नॉट टेल देम, ठीक है, पेरेंट्स को बताना नहीं, जस्ट गिव देम दिस कार्ड एज अ सरप्राइज गिफ्ट। पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को कभी एज अ सरप्राइज गिफ्ट ये कार्ड दो एंड देन सी द हैप्पीनेस, उनको देखो कितनी खुशी होती है। ओके, सो पेरेंट्स को आप क्या लिखोगे? हम यही लिख सकते हैं कि थैंक यू डियरेस्ट मम्मी एंड पापा फॉर लविंग मी, फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। इफ यू विश यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो, आप और भी कुछ लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा है इतना ही आप भी लिखोगे। यू कैन राइट समथिंग एल्स ऑल्सो, इससे अच्छा आपको कुछ समझ में आता है आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है ना। थैंक यू डियरेस्ट मम्मी एंड पापा फॉर लविंग मी, टेकिंग केयर ऑफ मी एंड गिविंग मी एवरीथिंग आई नीड। थैंक यू, ठीक है। कार्ड में अंदर कार्ड पे जब हम कुछ लिखते हैं तो आप के वट एवर यू हैव इन योर माइंड, वट एवर यू हैव इन योर हार्ट, जो भी तुम्हारे मन में है, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू कैन राइट ओनली 2 लाइन्स, ऑल्दो इट इज रिटन राइट 2 लाइन्स फॉर ईच ऑफ देम, बट 2 से आप 3 लाइन्स इफ यू विश यू कैन राइट 3 लाइन्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि 2 लाइन्स लिखा है तो यू हैव टू स्टिक टू 2 लाइन्स ओनली, ओके। So this you can write for your parents, now for your teacher. Teacher के लिए let us see what you can write. Teacher, teacher. टीचर के लिए भी थैंक यू कार्ड बनाना है। थैंक यू। Thank you, dear teacher, for teaching me, different subjects and for telling me stories and other good things. Thank you, teacher, dear teacher, for teaching me different subjects and for telling me stories and other good things. टीचर स्कूल में सिर्फ पढ़ाने के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें बताते हैं ना, दे टेल यू स्टोरीज एंड दे टेल यू सो मेनी अदर गुड थिंग्स, अच्छी क्वालिटीज, अच्छी बातें भी बताते हैं। टेलिंग मी स्टोरीज एंड अदर गुड थिंग्स। थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी, थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। स्कूल में तो टीचर्स ही आपकी केयर करते हैं टिल द टाइम यू आर इन स्कूल, मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, जितनी देर आप स्कूल में रहते हो यू आर अंडर टीचर्स केयर ओनली। स्कूल अथॉरिटीज एंड टीचर्स है, तो थैंक यू फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक थैंक यू कार्ड फॉर योर टीचर्स। Now in writing skill, we will do make sentences also today. Make sentences, or we say frame sentences. It means
इसका क्या मतलब है कि a word is given, we have done it earlier also, a word is given and you have to frame a sentence with that word. कोई भी अगर वर्ड दिया हुआ है तो उस वर्ड को यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है. ओके, frame sentences. Okay, words are there, you have to make sentences using the words. First word we can take is classmate. क्लासमेट में यू कैन राइट एनी नेम, किसी भी अपने फ्रेंड का नाम लिख करके यू कैन से रिया इज माई क्लासमेट, टिया इज माई क्लासमेट, रोहन इज माई क्लासमेट, अमित इज माई क्लासमेट, एनी नेम. मतलब जो भी आपकी क्लास में बच्चे पढ़ते हैं यू कैन राइट द नेम ऑफ एनी ऑफ योर फ्रेंड. लाइक यू कैन राइट गुंजन इज माई क्लासमेट, देवांश इज माई क्लासमेट, दिव्यांश इज माई क्लासमेट, एनी नेम. Okay, so classmate. Chalo, let me write. Tia. Tia is the name of the girl in first lesson. So Tia is my classmate. You can write Jaya is my classmate, Aman is my classmate, Meenu is my classmate. Any name you can write. Okay. Then second word is beautiful. Beautiful. The sentence in the lesson is my school building is very beautiful. But you can write any sentence. ठीक है, आप कोई भी सेंटेंस लिख सकते हो. Flowers are beautiful. Butterfly is a beautiful insect. ठीक है. The flowers in the park are very beautiful. My school is very beautiful. My mother is very beautiful. कुछ भी लिख सकते हो. There are beautiful flowers in the garden. There are beautiful garden में बहुत सुंदर flowers लगे हैं. There are beautiful flowers in the garden. Then bright. Bright जैसे मैंने बताया था, full of light, जो बहुत light होती है. We say it is very bright and colorful. So you can write it is a It is a bright day today. आज बहुत bright day है, मतलब sun की light है, very bright, cloud नहीं है. So we can say it is a bright day today. Together. Together मतलब एक साथ. ठीक है. So we play together, we go to school together, Raj and I go to school together. मतलब हम दोनों स्कूल एक साथ जाते हैं. We go to the park together, we play in the park together, we study together. You can write anything. बस जो word मैंने दिया है, that word should come in the sentence. Okay. So together you can write we play in the park. We play in the park together.
Compound. Compound, as I told you, compound means enclosed area. मतलब एरिया जो हर तरफ से कवर्ड रहता है, बंद रहता है, ठीक है. मतलब जैसे पार्क में आप जो पार्क इज नॉट एन पार्क को हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे. पार्क है, प्लेग्राउंड है, एनी फील्ड, वी विल नॉट कॉल इट अ कंपाउंड बिकॉज इट इज ओपन. कोई भी बड़ा सा फील्ड है, इट इज ओपन फ्रॉम ऑल साइड्स. कंपाउंड मीन्स एनक्लोज्ड एरिया, जो एरिया एनक्लोज्ड है, ठीक है. You can write my school compound is very big. My school compound is very big. Let me drink some water. Frame sentences means you have to frame a sentence using these words. जो words जैसे मैंने दिए, classmate, beautiful, bright, together, compound, you have to frame sentence using these words. अभी it is not necessary that you write these words only. ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यही वाले words लिखो, ठीक है. आप you can write any other word also, any other sentence also. You can frame sentence on your own also. आप अपने मर्जी से भी sentence frame कर सकते हो. Tia is my classmate. So it is not necessary that you write Tia only. You can write the name of any other child also. You can write any of your classmate. ठीक है. There are beautiful flowers in the garden. Not necessary. जरूरी नहीं है कि आप यही sentence लिखो. You can frame some other sentence also, like my friend is very beautiful. I have a beautiful dress. My mother is very beautiful. ठीक है. There, butterfly is a beautiful bird. Butterfly is a beautiful animal. Parrot is a beautiful bird. Peacock is a beautiful bird. So you can write any sentence. आप अपने से कोई भी sentence frame कर सकते हो, but the sentence should be correct. जो भी आप सेंटेंस फ्रेम करो वो सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए, ठीक है. सेंटेंस गलत नहीं होना चाहिए. सो दिस इज फ्रेम सेंटेंस. ओके. सो चिल्ड्रन, वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन. इन दिस लेसन व्हाट ऑल हैव वी डन? वी हैव डन द कॉम्प्रिहेंशन पार्ट. दैट इज, कॉम्प्रिहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है कि आपको लेसन कितना समझ में आया, और पोएम और लेसन वॉट एवर इट इज, हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड. तो उसको चेक करने के लिए कॉम्प्रिहेंशन इज ऑलवेज देयर. देन वर्ड बिल्डिंग इज देयर. वर्ड बिल्डिंग में वी हैव डन वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग्स. वी हैव डन मेल नेम्स एंड फीमेल नेम्स. जो नेमिंग वर्ड्स होते हैं उसमें जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उसमें इधर मेल इज देयर और फीमेल देयर. तो हमने मेल नेमिंग वर्ड्स किया, फीमेल नेमिंग वर्ड्स किया. देन वी डिड वर्ड चेन. बहुत सारी चीजें हमने की. देन इन दिस लेसन वी डिड द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स. जो वर्ड्स नेमिंग वर्ड्स की जगह पे यूज होते हैं. एंड नेमिंग वर्ड्स की जगह पे कब हम वो वर्ड्स को यूज करते हैं? व्हेन डू वी यूज दोज वर्ड्स? व्हेन the same naming word is repeated again and again. When any naming word is repeated again and again, then instead of repeating them, we use some other word. Those words are known as pronouns. जैसे हमने इस लेसन में किया, he, she, it, his, her, we and they. ये जो हमने words किए, they are known as pronouns. These words are used when the same naming word is repeated again and again. ठीक है. रिपीट करने से अच्छा नहीं लगता है, तो उसकी जगह पे हम फर्स्ट टाइम हमने नेमिंग वर्ड यूज किया एंड आफ्टर दैट वी यूज दीज वर्ड्स अगर नेमिंग वर्ड फिर से रिपीट हो रहा है. ओके. एंड देन वी डिड
the sound of O. And today we have done make frame sentences and designing thank you cards for parents and teachers. Okay? So this lesson is over, children. I will stop here only. In the next class, we will start the next poem. Thank you, children.